Hello everyone, Kanchan Chandra here. Welcome to my channel Learn Junction. Today I'll be starting the series of bio lectures, and this will be my first lecture, which is from class 9. So this is on tissues. So particularly we will be covering animal tissues today. What about animal tissues? Now, इतने complicated human beings, right? इतने complicated animals, but we are made up of only 4 types of tissues. So today we are going to deal with and see all this information which tissues have made up our body in details. Let's start, guys. Okay. Now, animal tissues are mainly of 4 types, as I said. So the first one is epithelial tissue. Epithelial tissue is your covering. So आपकी body में जहां भी covering है, right? This is a tissue which covers all your body parts. चाहे वो आपके internal organs हो या फिर आपकी skin हो, all these are made up of epithelial tissue. तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए जहां पे covering की बात आ रही है, that is your epithelial tissue. Okay. Second one is connective tissue. इसके नेम में ही है connective. So it connects other type of tissues in your body. Then you have muscular tissue. Muscular tissues are the tissues which are building up your muscles. So I have written blood here. Why? Because blood is a type of connective tissue. Then the fourth one is nervous tissue. Now nervous tissue are making up your nervous tissue is made up of from your nerves. ठीक है ना? तो ये 4 टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू. ये लेक्चर इज ओनली अबाउट एपिथेलियल टिश्यू. सो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ epithelial tissue है. So at the end of today's session, at the end of today's lecture, you should be able to tell about various types of epithelial tissue, उनके functions क्या हैं और वो कहाँ पे मिलते हैं. So location, function and types. This is what is expected by the end of this session. Okay, so let's start. Epithelial tissue. As I said, this is the covering tissue of the animals. ठीक है? So it covers the parts of the animals. अगर ये cover कर रहा है तो obviously what is it giving? It is providing a protection. It is a protective layer. Also, if this is a human body, okay, and there are many organs inside our body, so all the organs have this epithelial tissue. So ये epithelial tissue की वजह से ही जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड हैं. दे आर कीपिंग द ऑर्गन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इनसाइड द बॉडी. नाउ अगर हम इस टिश्यू को देखें तो दीज टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड. ठीक है, ये क्या होंगी, टाइटली पैक्ड होंगी और एक कंटिन्यूअस शीट बनाएंगी. कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बीच में नहीं होंगे. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है, although there are no intercellular spaces, but this layer is permeable. Okay, permeable मतलब यहाँ से in and out substances का हो सकता है. It allows transport and exchange of the materials. Okay, so epithelial tissues are permeable. They allow transport of materials. यही epithelial tissue का जो है मेन काम है. हम आगे के टाइप्स में देखेंगे. एक और चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे मैंने बोला कि ये टाइटली पैक्ड जो है सेल्स से बनती है. तो सेल्स जो है एक दूसरे से टाइटली पैक्ड रहेंगे. दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज अ सेल. सो मेनी सेल्स विल बी टाइटली पैक्ड. दे विल बी अरेंज्ड विद नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस. ठीक है, टू फॉर्म द एपिथेलियल टिश्यू. नाउ इफ यू कम टू द लास्ट पॉइंट, it says it is separated from underlying tissue by basement membrane. Basement membrane बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो एपिथेलियल टिश्यू में हम पढ़ते हैं. कोई भी टाइप की एपिथेलियल टिश्यू हो, हम आगे देखने जा रहे हैं 3-4 तरीके के एपिथेलियल टिश्यू. उस हर एपिथेलियल टिश्यू में नीचे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. एंड गाइज यू हैव टू रिमेंबर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी सेल से नहीं बनी है. ओके, इट इज नॉट अ सेल्यूलर, इट इज नॉन सेल्यूलर. ये सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, एक सपोर्ट है फॉर द एपिथेलियल टिश्यूज टू बिल्ड अबव इट.
ठीक है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे में सारा ब्लड सप्लाई होता है। सो ब्लड से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल आएगा वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से के अंदर जाएगा, एंड देन इट विल डिफ्यूज एंड इट विल गो इनसाइड द एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन विल बी फाउंड बिलो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हो वो किसके ऊपर बनी है, इट इज मेड अप ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके नीचे क्या होगी, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्यूलर। ठीक है, तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू का हमारा एक शॉर्ट में जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ इट, कि ये टाइटली पैक्ड सेल्स से बनी है। आप ये पिक्चर याद रखिए ना, आपको याद आ जाएगा कि टाइटली पैक्ड सेल्स से बनी हुई है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है, और उसके नीचे में क्या होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। दिस इज अ कवरिंग टिश्यू ऑफ ऑल द एनिमल्स, दिस गिव्स प्रोटेक्शन, and this is found in all the lining of the body parts, है ना, सारे body organs की lining में ये मिलेगा। Now we will go and see different types of epithelial tissue. So epithelial layer बोले, epithelial tissue बोले या epithelium बोले, it is one and the same thing. अगर हम types of epithelium देखेंगे mainly तो तीन है, ठीक है, squamous, columnar, cuboidal। ना guys, confusions हो सकते हैं आगे हमें नाम में चल के, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी नया नया है, बट प्लीज इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, जस्ट साथ साथ में समझते जाइए, एंड एट द एंड यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग। हम उसको फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। सो 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम आर देयर, स्क्वामस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड सी। जब आप देखेंगे आगे, मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता दूं, स्क्वामस का मतलब होता है स्केली, ये एक वर्ड से डिराइव्ड है, स्क्वामस, जिसका मतलब होता है स्केली। तो ये स्केल लाइक दिखेंगे, है ना, कैसे दिखती है फिश की स्केल्स, हम फिश बनाते हैं तो बनाते हैं ना ऐसे ऐसे, राइट। सो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे क्या होगा, स्केल लाइक ऐसे सेल्स होंगी। तो ये हो गई स्क्वामस एपिथेलियम। कॉलमनर में हम देखेंगे तो हमें कॉलम्स मिलेंगे, ठीक है ना, हम देखने वाले हैं आगे, बट अगेन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में रहेगी नीचे। क्यूबॉइडल में आप देखेंगे तो क्या होगा, क्यूब शेप की सेल्स मिलेंगी। ये तो दोनों हमें नाम से ही समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनर हो गया, एंड स्क्वामस हो गया। लेट्स सी देयर फंक्शंस, लोकेशन एंड मोर डिटेल्स अबाउट देम। तो स्क्वामस एपिथेलियम में अगर हम आए तो सी द फर्स्ट पिक्चर, हाउ डू दे लुक, दे लुक लाइक अ शीट, है ना, दे लुक, इसीलिए बोला स्केली अपीयरेंस, ठीक है, इसलिए स्क्वामस है ये। नाउ द सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। सेल्स कैसे हैं, थिन है, फ्लैट है। अगर आप देखेंगे तो इनके विड्थ ज्यादा है, ये टॉल ज्यादा नहीं है ना, दे आर वाइडर देन दे आर टॉलर, दे आर मोर वाइड। और इनका काम क्या है, दे हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये परमिएबल होती है, थिन होती है, और इनके थ्रू गैसेस और छोटे मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो सकते हैं। ओके, नाउ वेयर विल दे बी फाउंड, दे विल बी फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस। आपके माउथ की लाइनिंग में मिलेंगे, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में मिलेंगे, लंग्स की लाइनिंग में मिलेंगे, लंग्स में एल्वियोलाई है उसकी लाइनिंग में मिलेंगे। ठीक है, तो सारे स्ट्रक्चर्स ये जो है इनकी लाइनिंग में आपको कैसा एपिथेलियम मिलेगा, सिंपल स्क्वामस। अब हम इसको सिंपल क्यों बोल रहे हैं, ये सिंपल दिख रहा है बहुत, एक लाइन है, एक लेयर ऑफ सेल्स है। यही आप नीचे आएंगे तो यू विल सी इसके ऊपर लेयर 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 बिल्ट अप है ना, देयर आर मेनी लेयर्स। ठीक है, ओके, देयर आर मैनी लेयर्स। तो जब बहुत ज्यादा लेयर बन जाती है, लेयर इसको स्ट्रैटम, है ना, इसमें बहुत सारे स्ट्रैटम्स हैं, इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब है मैनी लेयर्स। तो बहुत सारी लेयर्स जब मिलती है तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अभी मैंने बात की थी कि जो स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है, एपिथेलियम हमने समझ लिया कि कैसी सेल्स है ना, क्या करती है। फिर हमने स्क्वामस एपिथेलियम अगर हम देखेंगे तो स्क्वामस एपिथेलियम जो है उनका अपीयरेंस स्केल लाइक है, यहाँ पे भी आपको ये स्केल लाइक अपीयरेंस दिख रहा है सब, इसीलिए इनको कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल में एक सिंपल एक लेयर है, स्ट्रेटिफाइड में बहुत सारी लेयर्स हैं।
अब क्यों है बहुत सारी लेयर्स, जैसे हम अपनी स्किन देखें, है ना, हमारी स्किन में रोज जो है एवरी आवर देयर आर सेल्स विच आर बीइंग डेड, ठीक है। तो जब हम हैंड वॉश कर रहे हैं या जब हम स्क्रब कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, तो दीज डेड सेल्स आर गेटिंग क्लियर्ड, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू टेक अ बाथ एवरी डे, राइट। सो ये जो ऊपर की लेयर है स्किन की, ये एवरीडे डेड सेल्स आर बीइंग क्लियर्ड। तो अगर एक ही लेयर होती, सिंगल लेयर, तो इज इट पॉसिबल फॉर द स्किन टू फंक्शन? नो। सो ऐसी जगह में कैसी लेयर होती है? एपिथेलियम की, स्क्वामस एपिथेलियम की स्ट्रेटिफाइड, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और जिसकी वजह से इट प्रिवेंट्स वेयर एंड टेयर, ठीक है। तो कहाँ मिलती है ये? इट इज फाउंड इन स्किन एंड इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। आई होप स्क्वामस एपिथेलियम इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। स्क्वामस एपिथेलियम कैसे दिखता है, आप सिर्फ इमेज देख के आराम से आइडेंटिफाई कर सकते होंगे इस इतने डिस्क्रिप्शन के बाद। एंड ऑल्सो यू शुड बी एबल टू लोकेट कि कहाँ पे आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा, इसोफेगस में, माउथ में, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, लंग्स की लाइनिंग में, एंड स्ट्रेटिफाइड यू विल फाइंड इन द स्किन। नाउ सेकेंड टाइप विच इज कॉलमनर एपिथेलियम। नाउ कॉलमनर एपिथेलियम, आप ऊपर देखो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कॉलम्स बने हुए हैं, है ना, दे आर लुकिंग लाइक कॉलम्स। जस्ट अ सेकेंड। तो ये आपको कॉलम्स दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे इनको, दे आर टॉलर। कैसी है ये सेल्स? एक सेल अगर आप देखो तो द सेल्स आर टॉलर, दे आर नॉट वेरी वाइड बट दे आर टॉल, एंड दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग columns, and these cells they help in absorption and secretion। और इसीलिए ये कहाँ पे मिलेंगी? ऐसी प्लेसेस में जहां पे बहुत सिक्रीशन की जरूरत है, जैसे कि इनर लाइनिंग ऑफ योर स्टमक, है ना, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, हमने देखा है इन अवर अर्लियर क्लासेस कि जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं कि इन स्टमक यू सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, HCl, डाइजेस्टिव जूसेस, है ना, एसिड सिक्रीट होता है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। तो ये सिक्रीशन जो है ये कहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है? कॉलमनर एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल्स की वजह से, ठीक है। एंड ऑल्सो जस्ट अ सेकंड, आई थिंक दिस इज डिस्टर्बिंग, ओके। एंड ऑल्सो इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस आर आल्सो देयर, ऑल्सो एब्जॉर्प्शन इज देयर। हमने देखा है कि जब सारा फूड डाइजेस्ट होके अवेलेबल हो जाता है इन सिंपलर फॉर्म्स, तो फिर क्या होता है? वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल्स में, एंड दिस एब्जॉर्प्शन हैपेंस ड्यू टू द कॉलमनर एपिथेलियम present in the inner lining of intestine, the small intestine and the large intestine। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर याद रखें एंड यू रिमेंबर कि इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, तो आपको एकदम से ध्यान आ जाएगा कि कहाँ पे मिलेगा ये। इट विल ऑब्वियसली बी फाउंड इन इंटेस्टाइन, जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बहुत सारा सिक्रीशन हो रहा है। इट विल बी फाउंड इन स्टमक, जहां पे अगेन सिक्रीशंस आर हैपनिंग। Now, इसका एक वेरिएशन है ciliated columnar। If you see down, again columns are there, but there is cilia over। Can you see? ये जो structures दिख रहे हैं, है ना, hair-like structures, these are called cilia। So simple, ये एक simple columnar epithelial ही है। नीचे आप देखेंगे तो simple columnar दिख रहे हैं जैसे ऊपर है ना, लेकिन इनमें क्या है? They have a cilia on their apical। apical मतलब top। So over their top they have cilia। and what are cilia? cilia are hair like projections। cilia hair जैसे projections हैं which help in movement of substances। now this is very important। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में वो हेल्प कर रहा है। अब आप देखिए, आपको जब खांसी आती है ना, या कुछ अटक जाता है, यू कॉफ, या फिर आपके जब कफ बन जाता है तो कफ ऊपर आता है। सो इस मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो लाइनिंग है उसमें सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, ताकि जब आप कफ करो तो वो कफ को ऊपर पुश करने में कौन हेल्प करेगा? द सीलिया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहां पे इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ म्यूकस। दूसरा फेलोपियन ट्यूब्स, अगर थोड़ा सा आप याद करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
तो यू शुड रिमेम्बर इन क्लास 8 हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है। ओवरी में गैमीट्स बनते हैं, फीमेल गैमीट्स एग्स बनते हैं, और उसके बाद वो फेलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म ट्रैवल करके जाता है ना, वहां से फिर जो जाइगोट है उसको नीचे आना होता है। तो डू यू सी देयर इज लॉट ऑफ मूवमेंट हैपनिंग वहां पे भी, है ना। स्पर्म वहां पे स्विम करके चला गया एंड देन द जाइगोट हैज टू बी मूव्ड इनटू द यूटेरस। तो अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो, ठीक है ना, यहाँ पे ओवरी है, देन दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब है ये है फेलोपियन ट्यूब आपकी, है ना, और यहाँ पे यूटेरस है। तो यहाँ पे एग रिलीज हो गया, ठीक है, स्पर्म आके एग से फ्यूज हो गया। अब जब ये जाइगोट बन गया तो इसको मूव होके कहाँ जाना है, यूटेरस में जाना है इम्प्लांट होने के लिए, बिकॉज द फीटस विल ग्रो इन द यूटेरस। तो ये जो मूवमेंट है इसमें कौन हेल्प करेगा, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो आप बस याद रखिए सिलिएटेड कॉलमनर में सीलिया होते हैं, सीलिया उसको मूव करने में, पुश करने में सब्सटेंसेस को हेल्प करते हैं। सो नाउ इट इज क्लियर। स्क्वैमस कैसे दिखते थे वो, स्केल लाइक, कॉलमनर कॉलम्स बने हुए हैं, इसमें हमने सिलिएटेड भी देखा जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स में मिलता है। नाउ द थर्ड टाइप इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, सो नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब शेप्ड सेल, ये उतने ही टॉल होते हैं जितने ये वाइड होते हैं, ओके, एंड दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट, दे हेल्प इन ओके। सो द नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्यूब शेप्ड सेल्स मिलते हैं, मतलब उनकी हाइट और विड्थ बराबर होती है। दे आर एज टॉल एज दे आर वाइड, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, मैकेनिकल सपोर्ट, एवरीथिंग, है ना। तो क्यूबॉइडल कॉलमनर में भी था एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, क्यूबॉइडल में भी है। यहाँ पे आपका एग्जांपल आएगा किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर ये आपकी किडनी है तो इसमें छोटे छोटे अंदर ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। So the kidney tubules have the lining as cuboidal epithelium, and then there are salivary glands also जहां पे cuboidal epithelium मिलता है। Now कुछ कॉलमनर और कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है एक स्टेज आगे पहुंच जाते हैं, बहुत स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। कैसे, पीछे जाओगे अगर आप तो आप देखोगे कॉलमनर में एब्जॉर्प्शन भी है, सिक्रीशन भी है, क्यूबॉइडल में भी एब्जॉर्प्शन भी है, सिक्रीशन भी है, लेकिन कुछ इनमें से मास्टर्स बन जाते हैं। किस चीज के, सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन के। इनको कहते हैं ग्लैंड्यूलर, इनको सिक्रीटरी एपिथेलियम भी कहते हैं अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है। if you go to other articles and study, they are also called secretory epithelium. why? क्योंकि ये जो एपिथेलियम है they help in secretion, इनका एक्सपर्टीज किसमें है, सिक्रीशन में, ठीक है। now some columnar and cuboidal cells they specialize in secretion. कैसे ये बन जाते हैं सिक्रीशन में स्पेशलाइज्ड, देखें तो ये आप देख रहे होंगे एपिथेलियल सेल्स की लेयर बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। क्यूबॉइडल समझो, कॉलमनर समझो, दोनों ही हो सकते हैं ये। अब इनमें से कुछ जो है ये नॉर्मली ऐसे सीधे रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, दे टर्न इनवर्ड, वो अंदर की तरफ मुड़ गए थोड़े से, एंड दे हैव, मतलब सीधे साधा ऐसे ग्रो होने की जगह इन्होंने क्या किया, एक जगह से व्हाट डिड दे डू, दे हैव फोल्डेड इनवर्ड, और इनवर्ड फोल्ड होके फिर वो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लैंड। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज कॉल्ड ग्लैंड। हम बहुत बार यूज करते हैं ना, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब क्या है, दे आर ग्लैंडुलर, दे हैव व्हाट काइंड ऑफ एपिथेलियम, उनमें भी लाइनिंग होगी कोई ना कोई, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ एपिथेलियम दे हैव ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इनका काम सिर्फ सिक्रीशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो स्वेट ग्लैंड्स हैं तो दे विल सिक्रीट स्वेट, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं तो दे विल सिक्रीट सलाइवा, मेमोरी ग्लैंड्स है दे विल सिक्रीट मिल्क, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने देखी ही है,
अगेन इन क्लास 8, है ना, तो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स हैं और वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, राइट। सो ये जो सिक्रीशन का काम है ये होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ना। इसके बाद वी आर गोइंग टू जस्ट सी ऐसे 2-3 क्वेश्चंस टू ब्रश अप व्हाटएवर वी हैव सीन, बट उसके पहले आई जस्ट वांट टू रिवाइज अगेन, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स मतलब एपिथेलियम बस हमने इस लेक्चर में देखा है आज, ठीक है ना। और ये जो एपिथेलियम है, ठीक है, इसके हमने पहले देखा स्क्वैमस, है ना, स्क्वैमस देखा, देन वी हैव सीन व्हाट, columnar, then we have seen cuboidal। ये इनके मेजर कैटेगरीज हो गए। स्क्वैमस में ही आपने देखा सिंपल भी होता है, ओके आई थिंक आई शुड कम दिस साइड, ठीक है। स्क्वैमस में यू हैव सिंपल एंड यू ऑल्सो हैव स्ट्रेटिफाइड, मतलब या तो एक लेयर या तो बहुत सारी लेयर, ठीक है। फिर कॉलमनर में भी हमने 2 टाइप देख लिए। अगेन क्या होता है कॉलमनर में, कुछ तो जो है वो सिंपल कॉलमनर रहेंगी और फिर कुछ क्या हो जाती है, दे हैव सीलिया, तो उनको बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर, ठीक है ना। फिर है कुछ क्यूबॉइडल, और उसके बाद हमने एक और कैटेगरी देखी जहां पे हमने क्या देखा कि कुछ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स ये स्पेशलाइज करते हैं इन सिक्रीशन और इनको कहते हैं ग्लैंड्यूलर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन टुडे, ओके। लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस। Okay. Which type of cells line the blood vessels? Blood vessels को कैसे cells line करते हैं? Now let's go one by one, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम हमने देखा है अभी। कॉलमनर एपिथेलियम में क्या काम था, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ब्लड वेसल्स में सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन जैसा कोई काम नहीं है। हमने सबसे शुरू में जो पढ़ा स्क्वैमस एपिथेलियम, कवरिंग प्रोटेक्शन, दैट इज द फंक्शन हियर। तो ब्लड वेसल्स में क्या मिलेगा आपको, स्क्वैमस एपिथेलियम, बट यस यू शुड रूट आउट अदर्स एज वेल। स्मूथ मसल टिश्यू, ये एक मस्कुलर टिश्यू हो गई। कनेक्टिव टिश्यू भी इट इज अ सेपरेट टाइप ऑफ टिश्यू, है ना, जो अभी हमने नहीं देखा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी स्क्वैमस epithelium. Next, the type of epithelial tissues present in bronchi and trachea. Now bronchi and trachea किसका पार्ट है आपके, रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी कफ है वो सब आपको ऊज आउट करना है, बाहर निकालना है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम नो, columnar no, ciliated columnar yes because it will help to push out the mucus, the cough, ठीक है। तो आपको ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देख के ही एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि आपको क्या यहाँ पे है, सिलिएटेड कॉलमनर। यही अगर लंग्स की लाइनिंग होती या फिर एल्वियोलाई की लाइनिंग होती, है ना, तो वहां पे फिर कफ का एंड कफ को पुश करने का फंक्शन नहीं आता, वहां पे आपको आता स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि वो थिन होते हैं और वो डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस की इधर उधर। तो आप जब ब्रीद इन कर रहे हो, ऑक्सीजन इज गोइंग टू द लंग्स, इस ऑक्सीजन को अब ब्लड वेसल्स में जाना है डिफ्यूज होके बाहर निकल के लंग्स से, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा लंग्स में। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया की। अगर थोड़ा याद करने में मुश्किल जा रही है तो जस्ट लेट्स ड्रॉ, है ना। ओके सो यहाँ से आपकी, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रैकिया, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ब्रोंकस, है ना। तो ट्रैकिया में और ब्रोंकस में आपको सिलिएटेड कॉलमनर मिलेगा, लेकिन वही अगर हम बात करें लंग्स की या लंग्स में जो एल्वियोलाई है उनकी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्क्वैमस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन का काम है और यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे म्यूकस को, कफ को, इस सबको ऊज आउट करने का, पुश करने का काम है। तो यहाँ पे आपको कॉलमनर मिलेगा, लेकिन कैसा कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर।
सो इस तरीके से आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं. नाउ टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच काइंड ऑफ टिश्यूज विल बी देयर? Inner lining of the mouth, it is squamous. Okay, so yeah, that's it for today. I hope that you have understood properly about the epithelial tissues. Next lecture we will cover connective, muscular and nervous, all three of them hopefully, because in the NCERT syllabus they are not in that much detail. So हम वो next lecture में cover करेंगे. And yeah, then please comment that what kind of topics you want more for me to cover, so I'll cover them. And yes, all the feedback and okay guys, so I hope you have liked the session, you have understood. If you have understood it well, please like, comment and subscribe to this channel for upcoming sessions. And in the feedback session, in the comment session, please give me feedback on कौन से topics आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा cover करूं, है ना, जो आपको difficult जाते हैं. So I will cover them first. Otherwise, I have my list according to which I will go. And yes, see you then in the next session. Bye bye.